بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ پر عقیدہ بدلنے سے معاشرہ بدل جاتا ہے۔ جیسا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہوگا، معاشرہ بھی ویسا تقریباً ہو جائے گا۔ میں یہ پہلے بھی تھوڑی سی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پر عقیدہ ایمان کے ہونے سے معاشرہ کس طرح بدلتا ہے۔ جب ہم اللہ کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر لیں گے اور مطلق العنان کی صورت میں لیں گے تو ویسی ہی صورت ہمارے ہاں پیدا ہوگی، معاشرے میں پیدا ہوگی۔ لوگ بادشاہوں کو ویسے ہی لیتے ہیں، لیں گے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ سمجھیں، جیسا کہ درست سمجھیں کہ اللہ باصول ہے، قاعدے قانون والا ہے، قانون بنایا ہے اس نے، قاعدے قانون کے مطابق چلتا ہے، قاعدے قانون کے مطابق چلنے والا ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدے قانون کے مطابق، کوئی کسی نے باہر سے اس پر نافذ نہیں کیے، امپوز نہیں کیے، وہ انہی کے مطابق چلنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ساتھ میں ٹچ کر لیں آپ قرآن کی آیت کو، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 138 کو، صبغۃ اللہ، ہاں تم اللہ کا رنگ اپناؤ۔ تو پھر جو بندہ اللہ کو ایسا سمجھے گا کہ اللہ قاعدے قانون والا ہے، تو وہ بندہ خود بھی قاعدے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، کرنا چاہیے۔ مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو قاعدے قانون، اصول اور عہد اور کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو بس یہ تھے کہ مسلمان ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صبغۃ اللہ جو میں عرض کر رہا ہوں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 138 کے مطابق، تو یہ رنگ نکلتا ہے۔ اگر اللہ پر یہ عقیدہ ہو تو پھر بندہ، یعنی کہ معاشرہ بدلتا ہے، افراد پر ہی مشتمل ہے نا، بات تو فرد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ گو اسلام اجتماعیت کو ڈریس کرتا ہے، لیکن ہوتے تو اس میں بندے ہی ہیں نا۔ بندے اگر اس طرح ہو جائے ایمان، عقیدہ ہمارا اللہ کے بارے میں، تو ہم ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، کرنی چاہیے۔ بالکل صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنانا چاہیے۔ اللہ کو نیلا پیلا یہ جو پگڑیاں باندھ لیتے ہیں یا کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے ایسا کہ اللہ کا رنگ کوئی ایسا ہے، نہیں۔ اللہ کا رنگ اپنانے کا مطلب اس کی صفات کو اپنانا ہے۔ تو یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ کس طرح بدلتا ہے۔ میں اس سے ایک زاویے کی طرف بات میں نے کر دی، پچھلی بھی دہرا دی تھوڑی سی، میں خاص کر اس کے ایک اور زاویے سے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں اور یہ میرا بالکل موقف ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں میں کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، لوگ اس پر نہیں سنتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ بالکل کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ میں یہ بات کیوں کرتا، میرے دماغ میں کیا کی رہا ہے؟ اللہ غیر جانبدار ہے، کسی طرف ڈنڈی نہیں مارتا۔ اس نے قوانین بنانے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ سورۃ بنی اسرائیل کی غالباً 18 یا 19 نمبر ہے، تو وہاں اللہ کی عطا پر کسی کی روک نہیں۔ وہ کافر اور مسلمان کے لیے دونوں برابر ہیں، قانون کہتے ہی اسے ہیں۔ ہمارا اگر ملکی آئین، پاکستان کا قانون اور آئین کہ جو سب کے لیے برابر ہے، کسی وہاں وہ تخصیص نہیں ہوتی کوئی الگ سے کسی کے لیے۔ اگر بائیں طرف چلنا ہے، میں چھوٹی موٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ سب نے چلنا ہے، پھر عورت ہے، بندہ ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی اسی طرح باقی ہے۔ قانون ہوتا ہی ایسا ہے، ہونا ہی ایسا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں کسی کے لیے اپنی مخلوق میں کسی کے لیے ڈنڈی مارے؟ تو ایسا نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کسی بندے کے کام کرنے میں مداخلت نہیں کرتا۔ دلیل میری ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت کے بغیر ہم کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کا لازمی جزو ہے، بلکہ یہ ایمان کا سر ہے۔ اگر کوئی جسم دیں آپ ایمان کو تو یہ ایمان کا سر ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان بالآخرت کیا ہے؟ موٹی سی بات
कि हमने अपने कामों का आगे जाकर जवाब देना है, जो हम करते हैं इसके बारे में हमसे पूछा जाना है। तय है ये बात, ये इस पर तो कोई शक ही नहीं है। अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला ने भी बार बार इस चीज का जिक्र किया है, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, तुमसे पूछूंगा, पोर पोर तुम्हारी इकट्ठी कर दूंगा। तुम ये मतलब पहले मुझे बनाना मुश्किल था या अब मुझे बने हुए इनको दोबारा बनाना मुश्किल है? कुछ भी नहीं, मैं कर सकता हूँ। कितनी बातें हैं इस तरह की। मैं सूरत हिजर की 92 और 93, तेरे रब की कसम हम तुमसे जरूर पूछेंगे जो कुछ तुम करते थे। सुमाला तो सालुना योमा इस दिन हम सवाल करेंगे अपनी नियमतों के बारे में, तुमसे पूछा जाएगा तुमसे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। यही मैशर है, हशर है, ईमान बिल आखिरत है। तो कैसे पूछा जाएगा? अगर अल्लाह ताला ने खुद ही मुदाखलत करके कोई काम करवा दिया बंदे से, तो फिर क्या पूछना? फिर किसी एक से करवा दिया, उससे क्यों करवाया, दूसरे से क्यों नहीं करवाया? क्या ये इंसाफ होगा? वो कादिर मुतलक है बेशक, लेकिन फिर क्या वो मुनसिफ नहीं है? वो को डंडी मारता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुनसिफ है, उसे बढ़कर और मुनसिफ कौन हो सकता है? वो किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। कुरान में कितनी बार आया है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि हमें कुरान को मरकजी नुक्ता रख कर आगे चलना होगा। जो भी बात होगी कुरान से होगी। मेरा ये ईमान है, मेरा नुक्ता मरकजी या कोई डायग्राम बनाने में जो मरकजी नुक्ता है वो कुरान है। तो कुरान में बारहा जिक्र किया कि अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जब जुल्म नहीं करता तो इसका मतलब है वो इंसाफ करता है। जहां जुल्म है वहां इंसाफ नहीं, जहां इंसाफ है वहां जुल्म नहीं। पाकिस्तान में जुल्म है, इसका मतलब इंसाफ नहीं पाकिस्तान। तो मैं ये अर्ज करता हूं, इसलिए ये बंदे के करने में, वो किसी के बंदे के काम में भी करने में मदाखलत नहीं करता बिल्कुल। बंदों से काम लिए जो, वो सिर्फ अंबिया कराम का गुरु है जिनसे उसने काम लिए, वो एक अलग चैप्टर है, अलग बात है। सिर्फ अंबिया कराम, वो उसने हदायत का एक जरिया बनाया, बंदे को पैदा किया और उसकी हदायत की जिम्मेदारी भी अपने सर ली उसने। तो उसके लिए उसने ये निज़ाम एक डेवलप किया कि बंदों में से ही उसने चुने बंदे, नबी जिसे हम कहते हैं, अंबिया कराम बोलते हैं, मुकद्दस तरीन इंसान, और उनके किताबें नाजिल की और बंदों की हदायत का बंदोबस्त किया। और किसी बंदे से वो काम नहीं लेता। जब हम ये कहते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह ने कुछ डाल दिया, तो बहुत ही गलत बात हम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। या जब कहते हैं अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले, तो ये हम बेहद गलत बात करते हैं। और मैं इसमें ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अब भी अर्ज करता हूं, ये समद, अल्लाह समद जो अल्लाह की सिफत है, वो भी इस बात का सबूत है कि वो किसी से मुतासर नहीं होता। हमारी किसी बात से, हमारे किसी काम से, अच्छे काम से, बुरे काम से, हमारी कोई दुआ से, किसी चीज से वो मुतासर नहीं होता। आप इसको भी साथ मिला लें। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। और ये ईमान बिल आखिरत को साथ मिला लें। और आप देखें कि वो बंदे के काम करने में मदाखलत, बंदा आजाद है काम करने में, काम करने में बंदा आजाद है, लेकिन काम का जो नतीजा निकलना है उसमें आजाद नहीं, उसमें इसका कोई इख्तियार नहीं। करने में सिर्फ इसको इख्तियार है, पूरी तरह ये करता है। मैं ये बात क्यों करना चाहता था वो मैं अब अर्ज करना चाहता हूं कि जब वो किसी काम में मुदाखलत करता ही नहीं, मैं कहता हूं यही सही अकीदा है अल्लाह के बारे में, काम करने के, बंदों के जो काम करते हैं। इसीलिए इसका हिसाब किताब हो सकता है। किसी जो भी बंदा मजजूब है, अकल नहीं है, जिसे जो जहाँ या अल्लाह ताला ने खुद ही किसी से कुछ करवा लिया, तो फिर उससे कैसा सवाल बनता है? ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, फिर दोहरानी पड़ती है। दो रास्ते हैं बता दिए, अकल दे दी, चलो जी। तो फिर अल्लाह, अगर उसने खुद ही किसी एक रास्ते पर किसी को चलाना, किसी को गुमराह कर दिया, किसी को हदायत दे दी, खुद ही कर दी, तो फिर क्या पूछना जिसको गुमराह किया, और जिसको हदायत दी उसको क्यों हदायत दे दी? जिसको गुमराह किया उसका क्या कसूर बनता है? नहीं, ऐसा है नहीं। ये बात हम गलत करते हैं। आजाद कर दिया बंदे को, तुम्हारी मर्जी, अकल दे दी, रब्बा इख्तियार भी दे दिया, कितनी बड़ी बात दे दी कि ये तेरी मर्जी है, बता दिया कि ये हदायत का बंदोबस्त कर दिया उसके लिए।
मैं जो बात करना चाहता था वो मैं जैसा कि अर्ज किया था कि माशरा बदलता है अल्लाह पर अकीदे के बदलने से, या जो अल्लाह के बारे में अकीदा है, पहले तो अर्ज किया ना कि वो बासूल है, फायहद निभाने वाला है, अपने खिलाफ नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो वैसा ही बंदे को सिबकतुल्लाह की रोशनी में हमें वैसा बनना चाहिए, होना चाहिए, माशरे का वो अक्स नजर आना चाहिए। तो दूसरी बात ये जो मैं अब छोटी बात आगे, लेकिन बहुत बड़ा मामला है ये हमारा, ये जो हम दुआएं करते हैं, वो क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हम उसको मुदाखलत की दावत देते हैं। तो क्या वो हमारी ये दावत देने से मुदाखलत कर देगा? नहीं करेगा। उसकी मशीयत में ये बात नहीं है, उसने तय ही नहीं ये बात की हुई कि मैं इन लोगों के कहने पर कुछ कर दूंगा। उसका अपना निजाम है, हो रहा है, चल रहा है। इसी से मैं आगे बात करूंगा कि फिर ये हम मज़ारात पर क्यों जाते हैं, ये दरबारों पर हम क्या लेने जाते हैं? ये जो पीर बैठे हुए हैं, ये गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, इस हवाले से, ये दुआ के हवाले से, या वो जो अल्लाह के खास बैठे हुए हैं जिनसे उनके कहने पर अल्लाह कुछ बदल देगा, तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम्हारे दिन फेर देगा, ये फिर क्या क्या मामला है? ये तो बिल्कुल हम गलत करते हैं। मैं ये कहना चाहता था, ये रुकावट माशरा बदलने की जो बात करता हूं, ये बदलनी चाहिए। अगर अल्लाह पर हमारा ये अकीदा हो, और जो कि दुरुस्त कुरानी अकीदा बनता है कि अल्लाह बंदे के काम करने में मदाखलत नहीं करता, किसी के कहने पर भी नहीं करता, तो फिर हम इन लोगों के पास नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, आगे दरबारों पर नहीं जाना चाहिए, मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए जो बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे गलत लोग भी बैठे हुए हैं, जैली पीर जिसे हम कहते हैं। एक तो वैसे ही अगर इस हवाले से जो भी बैठा हुआ है, मैं कहूँगा वो जैली है। वो लोग वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह लोगों की तकदीर बदल देता है, वो जैली है जो ये कहता है, या अल्लाह उनके वसीले से कुछ बदल देता है, ये गलत है, वो जैली है, वो 2 नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो फिर क्या बदलना, माशरा बदलना नहीं चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत होता है? तो अच्छा, इस पर दरबारों के बारे में बात करें आप, तो जो हमारे गैर मुकल्लद भाई हैं वो बहुत बुरा समझते हैं, गलत कहते हैं, शिर्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ठीक कहते हैं, मगर कीदा ये है कि ये अल्लाह करता है। उनमें भी पैदा हो गए दुआओं मांगने मुस्तजाबुल दुआ वाले लोग। अहले हदीसों में आपको मिलेंगे, वो कभी मांगते हैं दुआ, कभी नहीं मांगते। वो मेरा ख्याल वो किताबों से कि फलान नमाज के बाद आपने दुआ मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या नहीं मांगी, वो शायद इस हवाले से हो, लेकिन वो करते हैं ऐसा। लेकिन कीदा ये नहीं है कि अल्लाह मुदाखलत नहीं करता, कीदा है कि अल्लाह करता है, सब कुछ ही अल्लाह करता है। वो बहुत कहते हैं, बल्कि सब ही कहते हैं। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को, कि हम किस तरह वो उसको कादिर मुतलक बनाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात करते करते इतनी बात लंबी हो गई। तो ये इस तरह माशरा बदलता है और बदलना चाहिए। ये है कि अल्लाह के बारे में अगर हमारा अकीदा ये दुरुस्त हो जाए कि अल्लाह किसी के कहने पर भी नहीं कोई बात मुदाखलत नहीं करता, वो रसूलों वाला है, कायदे कानून वाला है, कायदे कानून के मुताबिक चलता है, उसके बनाए हुए कायदे कानून हमें जानने चाहिए। ये लॉ ऑफ नेचर जो हम बोलते हैं वो इसके कायदे कानून ही है जो गैर मुस्लिम डिस्कवर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं। हम उस तरफ आते ही नहीं है जब हमने ये सोच लिया कि अल्लाह ही करेगा। बड़े बड़े बंदे ऐसे कहते, जहादी, बड़े बड़े जहादी, मैं उनकी बातें सुनता हूं तो आखिर पर यही होता, अल्लाह को जब मंजूर होगा तो ये फलस्तीन का मसला हो जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, करना अल्लाह ने है। ये बात आधी दुरुस्त है, आधी गलत है। अल्लाह ने नहीं करना, जो जितनी वो कोशिश है वो जितनी पूरी होगी उस तरह वो काम हो जाएगा। बस हर काम के लवाजमात हैं, उस काम के लवाजमात जितने आपने पूरे कर लिए परफेक्टली, उतना वो काम मुकम्मल हो जाएगा। ये है, अल्लाह ताला मुदाखलत नहीं करता बंदे के
काम करने में जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर, लेकिन अकीदा ये मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें कुछ सुनी हैं, तो मैं अर्ज करता हूँ मैं साहब को तो नहीं सुना हुआ, तो बस ये अल्लाह नहीं करना है, अल्लाह को जब मंजूर होगा वो दिन आ जाएगा, फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा, वहां से पता नहीं क्या होगा, वहां से बगदाद से कोई फौज उठेगी तो वो इधर हिंद से गजवा, पता नहीं क्या क्या, मैं क्या बताऊं, जब को मौजू आएगा तो देख लेंगे। यहाँ सिर्फ मैं बात करना यही चाहता था कि अगर हमारा कीदा और ये होना चाहिए और यही कीदा है कि अमान बिल आखिरत को आप सामने रखें तो इन्हें हम जवाब देना है, और अल्लाह बंदे के कामों में मदाखलत नहीं करता, करेगा तो वो मुनसिफ नहीं कहलाएगा, ये जुल्म होगा कि खुद ही काम करवा लिया, खुद ही बंदे से पूछे और उसको दोज़ख में फेंक दे, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमें भी बदलना चाहिए, माशरा ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये जो कहानी शुरू हुई है जहाँ ये जैली पीरों की और दरबारों की, इसको खत्म होना चाहिए रसूली तौर पर देखा जाए। तो बस मैं ये बात करना चाहता था कि माशरे बदलने, अल्लाह पर अकीदा बदलने से माशरा किस तरह बदलता है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।